तुम किया है 111 कौन है? नहीं देखा। Without I card, without name, nobody will be allowed to enter. And keep silent. Nobody will speak. When there is need, you send the message. Okay? Take out the book. Go on now. कमरान। बीच में फालतू बच्चा कोई घुसेगा बताओगे? निकालेंगे। Okay? Now we start. This is a story about a small girl, and she was very much afraid of her father. Her father was a strict one, and she has developed a very bad impression for father, that father is very cruel and not love her, and all the time he is in mood to beat her, punish her. So the first question is, do you feel you know your parents better now than what when you were much younger? When you are very much small, 4 years, 5 years, 6 year old, at that time you do not know everything about your father, especially about his nature. Hmm. As to whether he is cruel or compassionate or kind or loving or caring or not caring. But when you grow up, 14 years old, 15 years old, you come to know about the real character and nature of your father. So this is also a story about a girl. His father was there, mom was there, and he has developed a very, let's say, bad impression for his father. And she all the time wanted that his father should be away from the home, because when he was away from the home, she was a bit Priya. Joined Priya? Priya joining. Priya joined, open the book, behind, and take out third chapter. Priya 9C. Saurabh, Rudra. Okay, Uttam. Everyone, welcome. Good afternoon again. And now come to the story. The little girl. Third chapter of the book Behind. To the little girl. Now the chapter. He was a figure to be feared. पापा पापा होते हैं ना प्यार के लिए, दुलार के लिए, पापा के देखते बच्चे खुश हो जाते हैं. But for this very little girl, father was a symbol of power, a symbol of anger, a symbol of, let's say, fear and avoided. That girl, what she did, that she tried her best to avoid the company of his father. If the father was, let's say, downstairs in any of the rooms, she used to go upstairs. If father was there, then she used to, let's say, come down. In this way, she was avoiding her father. I hope you are understanding the chapter. So the story of a family in which a small girl was there, 5 to 7 years old girl, and she was very much scared of a father. Okay, and that's why she all the time tried her best to avoid her father, the company of the father. She didn't want to go in front of her father. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. However, father was a job holder person. He used to go to office every day, but before going to the office, he used to come into her room and also used to give her a casual kiss, a kind of love, expression of love. To which she responded with goodbye, father. And whenever father was kissing at the time of departure from his home for office, or let's say he used to say, she used to say पापा गुड बाय. और वो चाहती थी कि पापा जल्दी से जल्दी और अधिक देर तक के लिए घर से बाहर हो जाए. She was in this very mood that she wanted that her father should be away from her house as long as possible.
And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Father used to go with a carriage. पुराने जमाने में गाड़ी होती थी और उसमें झुक 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 की आवाज होती थी। और आवाज जितनी दूर जाती थी ना, घर में आवाज उतनी, गाड़ी जितनी दूर जाती थी आवाज उतना कम आता था। ठीक है। और जैसे जैसे धीमी आवाज आती थी तो बच्ची खुश हो जाती थी कि चलो पापा क्या हो गया, पापा घर से बहुत दूर चले गए, ऑफिस चले गए, एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम ही विल बी नॉट हियर एंड आई विल बी फ्री, आई विल बी रिलैक्स and I will enjoy my life. And oh, the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. जब आवाज एकदम आना बंद हो गया इसका मतलब पापा घर से बहुत दूर चले गए। And she used to, let's say, I mean, enjoy. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. आवाज जा रही है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? फीडबैक दो। एनीवन? रुचि, प्रिया रंजन, प्रिया, तेजस्विनी, सब सब ठीक है? जानवी, आवाज जा रही, समझ रहे हो स्टोरी ना? ओके। अंशु, गुड। तो पापा सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग बाय 8 o'clock, 9 o'clock, or 10 o'clock was going. Before going, she was kissing the child, and the child, the daughter was saying goodbye, and the child used to listen the fainter sound of the carriage in which Papa was going. Okay, and she become relaxed that father has gone. But again in the evening, father has not gone forever. So again in the evening, father coming after the office, from the office after the duty. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. नीचे में हॉल होगा एक बना हुआ, उस हॉल में पापा का भारी आवाज, भारी भरकम डरावना आवाज, उस सीढ़ी पे खड़े होकर, ऊपर से जो नीचे सीढ़ी आती होगी ना, वहीं पर खड़ी रहती थी और पापा का आवाज को सुनते रहती थी। और पापा बोलते थे, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम। शी यूज्ड टू टेल द डॉटर, प्लीज गो एंड टेल, आई मीन टेक, ब्रिंग हियर माई टी, हैजंट द पेपर कम yet? और घर में अगर रूम में ड्राइंग रूम होगा, वो हॉल नीचे का, वहां पेपर नहीं रहता था, न्यूज पेपर। तो बच्ची से पूछे थे, आज पेपर यहाँ नहीं है, why you have not put there, or has the paper not come or not come? Mother, go and see if my papers out there and bring me my slipper. And in the meantime, father was giving a number of instructions. First bring my tea, and where gone my newspaper, and also telling to the, let's say, wife that go and bring my घर का जो चप्पल होता है, put via, उसको बोलते थे लेके आओ यहाँ। केजिया, now the main character of the story, her name is what? Kezia. Kezia is the name of the daughter. Okay, and she was very afraid of father. This is the main story, and she wanted to avoid the company and presence of the father. She wanted that all the time father should be away from home. And I hope you all children are understanding, isn't it? केजिया का एक अप्रोच होता था, एक कंसेप्ट होता था कि पापा के सामने जाएगी नहीं, पापा से बहुत डरती थी और चाहती थी कि पापा अधिक से अधिक देर तक घर के बाहर रहे। पापा सुबह जाते भी हैं ऑफिस, एंड देन अगेन ही इज कमिंग बैक फ्रॉम द ऑफिस इन द इवनिंग, एंड शी वाज स्टैंडिंग एट द स्टेयरकेस। वो सीढ़ी के पास खड़े रहती थी और उसके बाद वो क्या करती थी, पापा बोलते थे, चलो केजिया मेरा चाय लेके आओ, मेरा चप्पल लेके आओ, न्यूज़पेपर कहाँ है, आया कि नहीं। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, मम्मी भी बोलती थी उसको, केजिया इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। और मम्मी उसको प्यार से बोलती थी, तुम तो अच्छी बच्ची है, प्यारी बच्ची है, चलो नीचे आ जाओ और पापा का जूता उतार दो, मोजा खोल दो, बूट्स टेक ऑफ, ऑफ लिखा डबल ऑफ, ओ एफ, ओ डबल एफ मीन्स खोलना, उतारना, फादर्स बूट्स। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, और धीरे धीरे बच्ची ना चुपचाप धीरे धीरे डर से सीढ़ी से उतर के पापा के रूम में हॉल में आती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। There was a drawing room, as it is in every family, in every home, and she was very silently and, let's say, without making any sound, she used to, let's say, I mean, open the drawing room where father was sitting after returning from the office. Isn't it clear? I hope you are understanding, everyone. Simple story. Time and again I am telling about a girl. Okay? Okay. Good girl. Good student. Okay, Ruchi and Priya Ranjan. In this way, reply. Very good. Hmm.
And by that time, he had his specs on and looked at over them in a way that was terrifying to the little girl. जब तक केजी आती थी ना उनके पास, पापा उस समय तक आंख में चश्मा चढ़ा लेते थे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना है. And when Kezia was entering or coming near to him, father was looking at the girl, at his own daughter in a very fearful way, terrifying way. बच्चे को लगता था पापा हमको खा जाएंगे, पीट देंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे. इस तरह से वो दहशत में रहते थे. शिवाजी in panic. She was very much scared, and Papa was looking in that very way. And when Kezia was very close to the Papa, Papa used to tell what? Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. और केजिया को बोलते थे चलो केजिया जल्दी आओ और जल्दी जल्दी मेरे जूतों को उतारो और उतार के हटाओ यहाँ से एंड कीप देम और टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? और रोज रोज हर पापा पूछते हैं. दिन भर हम ऑफिस में थे, अगर स्कूल नहीं जाते हो, छोटे बच्चे बहुत हो तो 4-5 साल के, मनीष करण किस क्लास का है पता भी नहीं चलता. हम्म. अच्छा रहेगा सब अपना नाम लिख के लाओ, कार्ड लगाओ, तुम लोग को आई कार्ड मिला है वो कार्ड लगाओ. 1-2 दिन समय दिया तुमको, एक दिन का, इट्स अ जॉब ऑफ 1 मिनट, वन लेट्स से 10 मिनट. अप्लाई योर कार्ड एंड डू इट, अदरवाइज वी विल नॉट अलाउ यू. ओके 9C, ठीक है प्रिय रंजन, वेरी गुड. और पापा पूछते थे, रोज फीडबैक लिखते थे कि दिन भर तुम ठीक ठाक रही है ना, अच्छी बच्ची की तरह. आई होप डिसिप्लिन एंड यू वेर स्टडिंग वट एवर यू शुड स्टडी. सो पापा वॉज आस्किंग हर एवरी डे. दिस वॉज द रूटीन ऑफ द house, that early in the morning father was going office, and by the evening time father was coming from the office. She used to sit in the drawing room hall, and Kezia standing at the staircase, and he used to ask from Kezia whether you have been a good girl or not, whether you have created any mischief or what, and where is my newspaper, and bring my tea, and put off my shoes, and keep them outside. In this way, every day, the time was passing by. Well, Kezia, hurry up and pull up these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. अब पापा क्या बोले? वो सॉरी, केजिया क्या बोले? और केजिया सिंपल आंसर देती थी, पापा आई डोंट नो whether I have been a good girl or not, because mom can complain against me, or grandmother can complain, or the servants or other family members can complain that I was all the time playing or not doing good work or bad work, like mischievous work. So she simply was replying and responding father. जवाब देती थी क्या? That I don't know. तो पापा बोलते थे, you don't know? If you slatter like that, mother will have to take you to the doctor. और ये बेचारी डर से हकलाने लगती थी, पापा पापा, आई डोंट नो, ऐसे. तो पापा उसको फिर से थ्रेटनिंग करते थे कि ऐसे तुम हकलाओगी ना, इफ यू आर स्लटरिंग इन दिस वेरी वे, then I will ask your mom to take you to the doctor. And no children want to go to the doctor because of the injection and the medicine. But Papa was, let's say, I am in pressurizing her to speak in a clear cut way and don't, let's say, stammer or stutter. Like that, mother will have to take you to the doctor. She never shuddered with other people. पापा को देखते ही वो इतना नर्वस हो जाती थी, इतना ज्यादा वो मतलब हैबिट हो जाती थी कि वो स्टैमर करना शुरू कर देती, अकलाना. अदरवाइज वो साफ बोल रही है कि वो और किसी के सामने, मम्मी हो, दोस्त साथी हो, दादी हो, नौकर चाकर हो, पहले घर में पहले 2-4 नौकर चाकर गार्डनर होते थे, कुक होते थे, उन लोग किसी के सामने ये हकलाती नहीं थी. लेकिन ये पापा आए, हकलाना शुरू कर दी डर से. Had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. ये पापा के सामने एक दिमाग में डर बैठ गया था कि सही सही हम नहीं बोलेंगे, पापा हमको मारेंगे, पीटेंगे, पनिश करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे. इसलिए थोड़ा सोच समझ के बोलती थी, और उसको बोलने में वो स्टैमर और स्टटर करना शुरू कर देती थी. क्लियर है साहब? बार बार 3-4 बार हम बता दिए. स्टोरी ऑफ ए गर्ल, नेम इज केजिया, and she is very much afraid of father, is scared of father. Father having a big body, and father was looking very terrifying. But every day, before going to the office, he was going into her room and giving a casual kiss. And daughter was telling what? Bye, Papa. Goodbye, Papa.
And she used to listen the sound of the carriage. When the sound was very much faint, it means that father has gone far, far away from the house. She was, let's say, I mean, relaxing. And again in the evening time, father was coming from his duty, from his office, and sitting in the parlor room, that is the drawing room. And KJ was standing at the stair, and she used to look from there. And then again she was going up, and then Papa was calling her, and mother also telling that you are a good girl. Go to the father, take out his boots and provide him tea and newspaper. And Papa used to ask every day, what? Whether you have been a good girl or not, whether you have passed your time nicely or not nicely. Isn't it? What's the matter? What are you looking so wretched about, mother? I wish you taught this girl child not to appear on the brink of the suicide. और तब ये बोलते थे, ये बच्ची ऐसे क्यों देख रही है, नर्वस लग रही है, लगता है कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको बढ़िया से ब्रूम अप करो, अपग्रेड करो इसको, इनको पढ़ाओ, इसको पढ़ाओ लिखाओ, ये ऐसे क्यों लगती है, लग रहा कि जैसे अब ये सुसाइड करने वाली है। सुसाइड को अंडरलाइन करो, सुसाइड के मतलब बच्चे जानते हैं, स्पेलिंग इसको ध्यान में रखना, हर छोटा बड़ा चीज कौन वर्ड है कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्ड्स सही इस्तेमाल होना चाहिए। यार केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और फिर बोलते थे, पापा चाय ले लिया, ऑलरेडी ही हैज टेकन द टी, एंड अगेन टेलिंग टू केजिया दैट वेरी केयरफुली टेक बैक द टी cups and plates from the table, and it should be done in a responsible way, in a careful way, because otherwise if you are not careless it will fall down, and because it is of glass it will fall down and break. He was so big, पापा का बॉडी का आकार ही था, hefty figure, big figure. His hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. पापा जब भी चम्हाई लेते थे ना, बड़ा बड़ा मुंह खोलते थे, और उतना बड़ा बड़ा मुंडी, इतना बड़ा बड़ा हाथ, एक छोटी सी 4-5 साल की बच्ची पापा का शरीर देख के ही ना भयभीत हो जाती थी। और जब भी पापा खास करके मुंह खोलते थे चम्हाई लेने के लिए, he was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. पीछे में पापा से अलग, जब पापा नहीं रहते थे उनके सामने, केजिया के सामने, तो वो पापा के बारे में सोचा करती थी। ठीक है, कितने बड़े पापा हैं, ये तो राक्षस की तरह, जायंट की तरह, और इतनी छोटी हम बच्ची है। खैर, नाउ फिनिश द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज क्लियर, that is especially about a small girl and papa, and relationship is good, but the daughter is very much fearful, afraid. और नारोजी ये नहीं हम लेंगे, नारजो कौन है, नारजो 50 ना, अलाउड नहीं है इसको, नाम से आओगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगे। राइट योर नेम एंड सेक्शन, क्लियर कट, so that, and mind it, everything is being recorded. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे का दिन है, हॉलीडे है, पापा जनरली दोपहर में बीच रूम में जो है हॉल है वहीं बैठते थे, और केजिया डर से ऊपर रहती थी। लेकिन ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर वाज आल्सो इन दैट वेरी फैमिली, एंड ग्रैंड मदर यूज्ड टू, लेट्स से, आई मीन, सेंड दैट वेरी डॉटर to papa and mummy. She used to tell her, go to the, let's say, I mean, hall and be in the company of mother and father. Talk to them. बच्चों को माता पिता के पास बैठना चाहिए। रोज तो मौका मिलता नहीं है, पापा ऑफिस में है, तो कम से कम आज जाओ। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. और जब वो वहां कभी जाती थी, whenever she was going on Sunday in the drawing room in the afternoon, she saw that mother was reading something like newspaper or some book or, let's say, magazine, and father reading and reading and reading. She was, let's say, stretching long, and yeah, you can say that she was napping. छोटा मोटा जो झपकी लेते हैं ना, वो झपकी लेते थे। His handkerchief on his face, वो कवर्ड कर दिए। कभी कभी आदमी को लेटे हुए दोपहर में आराम मिलता है, खाना पीना खा के वो कवर्ड करके अपने फेस को, और हल्का फुल्का सोते थे, जिसको नैप बोलते हैं, siesta. That means, let's say, I mean, afternoon sleep, a small sleep. His feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. And Papa was what doing? Stretching his leg on the table and sitting and covering his face. And he was, let's say, I mean, sleeping, and जोर जोर से खर्राटा लेते रहते, स्नोर करना, स्नोर को अंडरलाइन करो सब, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। खूब गहरी नींद में सोते थे पापा, 10-20 मिनट, आधा घंटा जो सोए, और काफी जोर जोर से। प्रेम कुमार 9 डी, रोल नंबर 1। ओके, प्रेम है जी कोई? स्टोरी समझ में आया तुम लोग को? बच्चे बैठे हुए हो, 19 स्टूडेंट्स आते हैं, 18 स्टूडेंट।
5 to 7 times I have told you the story. Abhinav, Abhineet, Aditya, listening the story and understanding the story. Everyone, simple story in English and in Hindi. In both the version I have told you, isn't it? जानवी है, कामरान है, खुशी गुप्ता, मनीष, करण, मयंक, ठीक है, प्रिय रंजन, ऋषभ, ओके, ओके रुचि, ठीक है बेटा। और आगे चलते हैं, ठीक है। तो पापा दोपहर में क्या करते थे, खास करके संडे को, और यू कैन से दैट ओनली ऑन संडे after his, let's say, I mean, midday meal, used to sit in the drawing room with the mother, and both used to, let's say, read some sort of magazine or newspaper, and in between it, father used to have a sleep, a small sleep, but sleeping soundly, and sleeping with great sound, big loud sound was coming out of his, let's say, I mean, nose and throat. That is known as a snoring, S-N-O-R-I-N, snoring. She sat on a stool, और वो तो दादी बोली है और पापा भी यहीं पर है, तो छोटे से स्टूल पे बैठ जाती थी। Gravely watched him until he woke and stayed. जब तक पापा का आंख बंद है ना, सीरियसली उनको वॉच करती थी, तो भयभीत होती थी, जितना देखती थी और ज्यादा भय होता था। Gravely watched him until he woke and stayed, और फिर पापा उड़ जाते थे, दोपहर में तो नींद ज्यादा लगती नहीं, 10-20 मिनट में, और फिर हाथ पैर फैला रहे हैं पापा, ओके। Gravely watched and stretched and asked the time, then looked at her. फिर पूछते थे, रे लगता है आदमी को ना कभी ज्यादा सो गया, घंटा घंटा, तो पूछते थे कितना टाइम हुआ था। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑय। और ये तो डरी रहती थी, और पापा को लगता था ना कि गुस्से में हमको देख रही है, तो पापा बोलते थे, केजिया इन दिस वे डोंट लुक एट मी। स्टेयर मतलब होता है गेज करना, कंटिन्यूअसली लुकिंग एट मी, बिकॉज इफ यू लुक लाइक दैट यू लुक लाइक ए ब्राउन आउल, उल्लू की तरह लगती है तुम देखने में, ऐसे मत लुका कर। पापा को थोड़ा प्यार से और समझाना चाहिए था, गोद में लेके ढंग से कुछ करना चाहिए था, लेकिन भारी आवाज में डांट के बोल देते थे, बच्ची और डर जाती थी। नाउ कम ऑनवर्ड्स, दैट वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. Isn't it? What happened that once Kezia fell in, she may have fever, kept indoors with a cold, थोड़ा बहुत सर्दी थी या इसको सर्दी लगी होगी, तो ये आज घर से बाहर नहीं जा रही, नो आउटडोर ओनली इंडोर। एंड व्हेन शी वाज इन द कंपनी ऑफ द grandmother told that your father's birthday was coming in the next week and you should give him a good gift। और उस समय गिफ्ट बाजार से लाके नहीं दिया जाता था, घर में जो भी है उसी का अरेंज करो। और दादी जी सजेस्ट की, उसको एडवाइस की, दादी जी एडवाइस और सजेस्टेड दैट शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट। एक पिन का कुशन बना लो, और कुशन बनाने के लिए ना वो क्या होता है, जैसे तकिया होता है, उसका एक खोल होता है, उस तरह से खोल बनाओ और उसके अंदर कुछ भी डाल दो। घर में कपड़ा पड़ा हुआ है अच्छा सा येलो सिल्क है, वो सिल्क कपड़ा वेरी सॉफ्ट एंड येलो रंग, गोल्डन रंग, एक काइंड ऑफ गोल्डन रंग, वेरी गुड वन। सो दादी माँ सजेस्टेड, क्लियर बेटा, that Kezia should make a gift. What sort of gift? Underline करो, क्या गिफ्ट बनाएगी एज पर दादी जी, एडवाइस ऑफ दादी जी, पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट, आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। घर में कपड़ा रखा हुआ, आराम से तुम उस कपड़े को सिल के, छोटी बच्ची है, सिलाई करेगी या मम्मी से मदद लेके वो सिलाई करेगी। क्लियर है सर? बोलो। हेलो। प्रिया है? प्रिया, आर यू हियर? Yes, then respond. Okay. Listening and understanding, intelligent girl, good student. All of you are good children, either 9C or 9D. And listen. तो दादी जी ने सजेस्ट किया, बार बार एक ही बात बता रहे, दादी जी ने सजेस्ट किया कि नेक्स्ट वीक पापा का बर्थडे आ रहा है, पापा को कुछ गिफ्ट दो, और हमारे हिसाब से गिफ्ट यही रहेगा कि यू लेट्स से आई मीन मेक ए कुशन, कुशन कवर और ए काइंड ऑफ कुशन,
पहले उसका खोल बना, अंदर में कुछ भी स्टफ कर देना। घर में एक पीला येलो सिल्क का पीस पड़ा हुआ है। लेबरसली विथ अ डबल कॉटन द गर्ल स्टिच थ्री साइड। तकिया बनाने के लिए तो 3 साल 3 साइड से सिलना पड़ता है। और छोटी बच्ची थी, फिर भी मेहनत करके जैसे तैसे वो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबरसली? ठीक है रुचि। लेबर का मतलब होता है परिश्रम करना। कैसे बोलते हैं? घर में लेबर लगा हुआ है, काम कर रहा है, मजदूर को बोलते हैं। और कस के मेहनत करने को बोलते हैं लेबरसली। एडवर्ब बनाया। Because she was, let's say, very small girl, she didn't know how to, let's say, I mean, stage. But still, because Dadi Ma has told, and she wanted to give a gift to her father, and she thought that if I will give a gift to my father, father will be happy, father will not be scolding me in the future, and father will love me. So she did as grandmother has suggested. वो ली होगी, निडिल ली होगी, धागा ली होगी, और उस कपड़े का 3 तरह से सिलाई कर दी तकिया बनाने के लिए। ठीक है। पीलो स्टिच्ड 3 साइड्स, बट व्हाट टू फिल इट विथ। अब इसके दिमाग में आ गया कि इसमें भरा क्या जाए। कवर तो तैयार हो गया, इसके अंदर क्या डालते हैं? That was the question because she was very much small. Nothing was coming to her mind. If she had been a big girl, a matured girl, then she could have, let's say, thought in other way. But because nothing was coming, and she thought that whatever I will do my by myself. So she was, there was a problem before her. The grandmother was out in the garden. दादी भी नहीं है, दादी बाहर बगीचा में है। पहले घर बड़ा बड़ा हुआ करता था, आज के जैसा नहीं कि 2 3 4 कमरा हुआ। घर के आगे, घर के पीछे काफी खाली जमीन है, उसमें पेड़ पौधे हैं, बगीचा है। एंड सी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप। कुछ भी कतरन मिल जाए, कपड़ा का, पेपर का, उतना मिल जाए ताकि हम वो, चूंकि दादी गार्डन में थी तो वो मम्मी के घूम में चली गई, मम्मी के रूम में, और चारों तरफ सी वाज, लेट्स से, आई मीन, लुकिंग एट एंड फाइंडिंग आउट, स्टेयरिंग एंड फाइंडिंग आउट एज टू समथिंग शुड बी देयर that should be filled into that pillow cover. On the bed table, she discovered a great many sheets of finer paper. वो पगली थी, बच्ची थी, उसको समझ में नहीं आया। साफ सुथरा लिखा पड़ा हुआ पेपर। बेड के बगल में जो टेबल रखते हैं, जहां हम लोग चाबी चाय रखते हैं, कुछ बुक्स रखते हैं, पुराने जमाने में वहां लैंप रहता था, टॉर्च रहता था, उसी पर कुछ पेपर पड़ा हुआ, काफी सारा पेपर पड़ा हुआ। थिक ऑफ पेपर्स, फाइन पेपर्स, रिफाइन। वो जो सोचना चाहिए था इसको, इतना अच्छा पेपर है, ये काम का होगा। गैदर्ड देम अप, सारा का सारा उठा ली। शी पिक्ड अप द एंटायर एंड स्टार्टेड टीयरिंग एंड टोर द एंटायर पेपर। सारा का सारा पेपर पढ़ ले। पेपर को डायरेक्ट घुसाएगी नहीं, उसको तो उसमें बम कर करके घुसाना। टोर देम इनटू टाइडी पीसेज एंड स्टफ्ड हर केस। और जो वो केस बनाई थी, कवर बनाई थी, उसको सब उसमें स्टफ कर दी, ठूस दी, घुसा दी। देन स्वीट अप द फोर्थ साइड, और जब पूरा भर गया, चौथा साइड जो खुला हुआ था, वो चौथा साइड को भी सिल दी। दैट नाइट देयर वाज ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई एक प्रोवर्ब है, फ्रेज है। ह्यू, ह्यू का मतलब तो ऐसे रंग होता है, लेकिन ह्यू बेटा, रुचि, जब ह्यू एंड क्राई एक साथ आएगा ना, एक साथ आया, अंडरलाइन करना, इसका मतलब होता है हल्ला गुल्ला, अशांति, चीखना, चिल्लाना, शोर शराबा। वेरी गुड बेटा। दरवाजे ह्यू एंड क्राई, घर में हल्ला होता है ना, ये पेपर कहाँ गया, वो इंपॉर्टेंट पेपर था, ऑफिस का था, मेरा नौकरी चला जाएगा, मम्मी बोल रही है, हम नहीं देखे, वो नहीं देखे। तो इस तरह का जो कोलाहल हुआ, दैट इज नोन एज ह्यू एंड क्राई। और खाली ह्यू आएगा तो ह्यू का मतलब गलत होता है। इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट ऑथोरिटी। जैसे कि हमको या तुम्हारे पापा को ऑफिस में काम करना है, काम करते हैं, एंड सपोज दैट सम ओकेजन इज देयर, डिफरेंट स्पेशल ओकेजन लाइक स्पोर्ट्स डे और एनुअल डे or some function day, and then the task is given to a man that you have to give the speech, and papa prepared the speech. Everybody cannot go on speaking in English for a long time, so in advance they put the matter on pen and paper, on page they write it in 1 day 2 day 4 day, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कौन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो सारा पापा लिख के दिए। क्यों? इसको याद रखेगा, पापा का स्पीच था, पोर्ट ऑथोरिटी हैड बीन लॉस्ट। ठीक है, उसी पे स्पीच देना था कि पोर्ट ऑथोरिटी लॉस्ट हो गया। Rooms were such, पापा तो को याद है, that I have kept it on the table, but it was not in the table, on the table, because she has kept it. I mean, she has taken it, tear it and stuff, तो मिले कहाँ, बाहर रहता तो अपना तकिया के अंदर चला गया। Then that's why the entire rooms were such. Servants questions, even the servants were asked. Yes लगा हुआ है। servants में मतलब घर में, हम पहले बताया, हम लोग के घर में पुराने जमाने में जब दादा दादी थे ना, नौकर चाकर होता था। कोई कुक का काम कर रहा है, कोई सामान लाने का काम कर रहा है, कोई गार्डनिंग का कर रहा है, कोई झाड़ू
सफाई का काम कर रहा है। तो जितने भी नौकर चाकर थे, whatsoever में भी, all the question, I mean, servants were asked whether you have seen that paper or taken that paper, or have you let, I mean, kept it at anywhere from the table. Finally mother came into Kezia's room, और अंत में जब कहीं नहीं मिला ना पेपर, तो मम्मी आ गई किसके पास, केजिया के पास, केजिया के रूम में। केजिया, I suppose you didn't see some papers on a table in our room, and she told that in our room, in the room of Mummy and Papa, there was a table, a small table. On it, such papers were kept there. So Mummy told that I hope that you haven't seen or taken or destroyed that very paper. I hope you have understood, isn't it? मम्मी आई अंत में, सारा जगह ढूंढ ढांड के, नौकर चाकर से पूछ के, इट इज या क्या किया, कहीं तुमने तो उस पेपर को नहीं देखा है? बोलती है, oh yes, she was an honest girl, innocent girl, and she accepted that. Yeah, she said, I tore them up for my surprise. And she told that because grandmother has told me to give a gift to my father, I sewed the cover, the case for a pillow, and I have stuffed all those paper into that very pillow cover. What? Screamed mother. Mother was very much shocked, and similarly at the same time she was surprised, and that's why she told, what? Come straight down to the dining room this instant. और बोली, अब चलो किसके पास? पापा के पास चलते हैं। अब पापा बुला रहे हैं, चलो नीचे डाउन रूम में। एंड शी वाज ड्रैग डाउन, आ तो रही थी डर से, पहले ही से पापा से भयभीत, तो आज तो इतनी बड़ी गलती कर दी, उसको खींच के लाई, मम्मी लाई, टू वेयर फादर वॉच पेसिंग टू एंड फ्रो बोलते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। एक रूम में पापा पागल हो गए, इतना हम मेहनत से तैयार किए, कल हमको या आज हमको भाषण था देना, उसी को देख के और वो ही नहीं, तो पापा तो ऐसे ही गुस्से में भी थे और डिस्टर्ब भी थे। और पेस करना मतलब होता है ऐसे ही टहलना रूम में, PAC। दो पैरों के, हमारे दो पैरों के बीच में जो जगह होती है उसको पेस बोलते हैं, और पेसिंग ING लग गया मतलब वर्ब बन गया। पेसिंग, टहल, चहल कदमी कर रहे, टहल रहे इधर से उधर रूम में। एंड फ्रॉम देयर टू हियर, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, हाथ पीछे रखे हुए हैं और वो टहल रहे हैं। वेल ही सेड शार्पली, एंड देन मदर एक्सप्लेन्ड। वो जैसे ही आए दोनों ना, केजिया और मम्मी, पापा सिर्फ बोले, वेल मीन्स इज देयर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पेपर, हैव यू फाउंड और गॉट द, लेट्स से, इंफॉर्मेशन, और द, लेट्स से, सम सॉर्ट ऑफ, लेट्स से, आई मीन, हिंट एज टू वेयर दैट पेपर हैज गॉन? बोलो पता है? तो मदर ने सब कुछ बता दिया, that she has destroyed that paper and stuffed into the, because she, Kezia, I mean, Kezia wanted to give you a gift on your birthday. He stopped and stared at the child. ये तो गुस्से से पागल हो गए, 4-5 साल की बच्ची और पापा को ऐसे ही दिखा रहा है, गुस्सैल है, और उतना बड़ा शरीर है उनका, और उनको एकटक घूरने लगे। पापा केजिया को continuously started looking at, did you do that? And he simply asked, Kezia, have you done that? ऐसा किया है क्या जी? नो 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 नो, ये तो पहले ही से पापा को देख के स्टैमर करते थे, और स्टैमर करने लगे। शी विस्पर्ड, धीरे से बोली, नो मदर, go up to her room and fetch down the damn thing, see that the child's put to bed this instant। और बोलते हैं, कहाँ है वो तकिया, जो पेपर उसमें घुसाई है, उसको लेके इधर लेके आइए इसको, ठीक है? सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस instant, और इस बच्ची को अभी का अभी सुलाइए आगे जाके, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया सबको सब कुछ? नाउ रिप्लाई एवरीवन। रुचि एंड प्रिया एंड कामरान, बोलो बेटा, सब ठीक है? अंशु, वेरी गुड वेरी गुड। आदित्य, हाँ, ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं, देयर देयर, ओके ओके। इंटरेस्टिंग स्टोरी इज देयर एंड सिंपल स्टोरी इज देयर, एंड टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग द स्टोरी इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट यू कैन गेट द कंसेप्ट ऑफ द स्टोरी। 9D में कौन पढ़ाते हैं इंग्लिश? मधुबाला मैम है, कौन है? प्रिया रंजन, अच्छा, उर्वशी मैम है, ओके, गुड। यू डोंट नो, वेट वेट, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, और ये तो पहले ही से रो कर बेहाल हो गई है, और अब समय खत्म होने वाला है, ठीक है? नो प्रॉब्लम, 1-1.5 मिनट और है, फिर हम लोग मिलेंगे कल या परसों, एक दिन और क्लास है, उस दिन इसको पूरा कर देंगे, और फिर क्लास में फिर से पढ़ाई हो जाएगी। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो रो रो कर बेहाल है और एक्सप्लेन कर रही है, पापा आई डोंट नो दैट इट वाज एन इम्पोर्टेंट पेपर, आई थॉट दैट इट वाज ए वेस्ट paper, and because I wanted to give you a surprise gift of pillows, so I stuffed it. She lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वो रूम में पड़ी हुई है, पापा खूब पीटे हैं और जमीन पर शैडो बन रहा है। ओके, रुचि, then father came into the room with a ruler in his hand, और ये तो मम्मी बोल ही दिए थे कि ले जाके उसको रूम में लेटाइए और सुलाइए।
पापा का गुस्सा अब सातवें आसमान पर से became very much angry and he went to her room and started beating her because he was with a ruler. एक छड़ी एक स्टिक जैसे होता है तुम्हारा स्केल, वैसा ले गया। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, और बोले कि अब तेरे को छोड़ेंगे नहीं, इतना तू बड़ी गलती कर दी है ना, एंड आई विल बीट यू। ओ नो नो नो, और वो पहले ही से डर, जब डर गया वो मर गया तो पहले ही से डर गई है। सी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और जो होता है हम लोग का बेडशीट, उसके नीचे वो घुस गई, और उसको घुसने से चोट थोड़ी बचेगा। ही पुल्ड देम असाइड, वो चादर को हटाया, द बेडशीट, सिट अप।